Professor Sahasrabudhe, I have done. Yeah. As far as the undergrad degrees are concerned, I think there are still challenges as far as full online degrees are concerned. But certainly, masters, PhD, or standby, or additional, studies, or even 20%, 40% credits of the course being taken in. I think these are all possibilities, but full online degrees still a long way to go, because whether it is sports, arts, culture, dance, drama, music, human relations, I think ethics, values, they will all come from human interaction. And therefore, I think brick and mortar models will continue and should continue also for some more time at least. The next one is also Vice Chancellor of an open university, and therefore his views on this particular topic, how do we reach everyone? Professor Nageshwar Rao, may I ask you to now take over? Good noon to all of you. Honorable Chairperson Anil Sahasrabudhe, distinguished panelists. First of all, I thank the UGC for giving me an opportunity to be with you this noon. We have to increase the GER, and that to 50% by 2035. And open and distance learning and the online learning, it has to play an important role in this context. As of now, only 10% of the total enrollment is being contributed by the ODL system. Of course, there are 15 open universities and around 80 dual mode institutions. But already the ball is set for rolling. We are now having the ODL regulations. We are now having the online regulations. We are having a SWAYAM platform established way back in 2016. We are having Swayam Prabha channels from 2017. And so many things we have done during the last 3 to 4 years. And maybe all these things, they give us a hope that yes, we can achieve the target which has been stipulated by our policymakers and the planners. I am going to present my brief in 2 parts. Initially, I would like to talk about the way of the ODL and online learning process. There, I would like to put mainly the e-resources. E-resources, they're going to play an important role. Then the course-based intervention, that is the SWAYAM. Then delivery mechanism, that is also to be made fast. And lastly, the evaluation. Then once we look at the e-resources, we see that we are having abundant human resource, abundant e-resources. The e-resources you will find, they are having with National Digital Library. Look at the quantum of e-resources there. Around 5 crore books are available, e-books are available. And the users are around 26 lakhs. During this COVID-19 period, looking into it. And they have found that most of the e-resources, they are in local languages also. So that can also be, even NPTEL is also having their e-resource. Shodhganga, EPG Pathshala, and even IGNOU is also having e-Gyan Code. What we see in all those cases, that there is one link which the MHRD and UGC is planning. And through that one-stop portal, they can have all these e-resources at one place and get connected to this huge e-resources which are available free of cost to the learners. Mobile app is one more area wherein we can reach to our learners with these e-resources. IGNOU is also having a mobile app, and at present around 6 lakh learners. They can look at all the available courses which the IGNOU is having. We are also around 200 courses with us, and all those courses, they are being simply downloaded from the Google Play Store with their mobile. The delivery mechanism, because once we are having the e-resources, then we have to look into that, how the delivery mechanism, it can be made faster. And here in this context, what we see is that Swayam Prabha, it is coming up in a big way. There are 32 Swayam Prabha channels, 33. And you see that they have got a wide spectrum of all these channels.
NPTEL is having 10 channels. They talk about the technology engineering courses. Then UGC and the CEC, they are also having 10 channels dealing with PG and UG courses. IGNOU is also having 4 channels dealing with certificate and diploma courses. NCRT, NIOS, and the IIT Paul, 4 channels there for competitive examination. What you see that they all are available at the home of the learners. 33 dish TV channels. Even the government is also planning that let these dish TV, it can be extended to other carriers like the Tata Sky, and maybe if it is being extended to this Doordarshan, then its reach will be much, much more. Recently, one more intervention has been taken place, that is translating that material, translating those videos into the local languages. And the process is on at a faster pace. Initially, the MHRD has planned to have it in 8 languages. And maybe they are planning to have it by the end of this August. All those important courses, at least out of those 3,000 courses, 2,000 or 1,000, they can be in the 8 regional languages. Regional languages means we are now reaching the learners at a in their own language, so that understand and learn the things at a faster pace. Then we look into the other modes. Rightly, IIT Madras director has said that our Facebooks, they can also be used extensively. And Facebooks, if you see, that we have used those Facebook sessions comprehensively. During this COVID-19 period, we could have 240 discipline-based courses, and we have reached to around 42 lakh learners in this period of 3 months. Of course, the viewership is more than 8 lakh. And in addition to that, we are having online counseling sessions through the 56 regional centers spread all over the country. And there we are using the Google Meet, Zoom, WebEx, and other modes, through which we find that the face-to-face counseling sessions, which earlier we used to have it in our ODL process, that can be replaced effectively. Here, one more advantage the learner is getting, that these sessions, they are in the form of videos. And at latter stage, they can download those videos whenever they find that it is to be listened again. It is not so in case of the face-to-face learning there. There is one more thing which we are adding during this particular process, that is web-enabled academic support. This web-based enabling support we are doing for each course, each program. Here at one portal, we are using the OER, Open Educational Resources. And by using these open educational resources, we are creating one portal. And for that particular program, the concerned teacher, he is having all the available resources, videos, the material, the assignments, and also the grievance handling mechanism. And these things that can be used by the learners, and they will be in direct touch with the learners. Secondly, at the regional centers also, all the learner support for that, so we are providing this sort of one portal support. So that is also technologically giving us lots of satisfaction from the point of the learners. And they feel that now they are getting the things in a much better way. Swayam platform, it has picked up effectively. And you see that during the last 3 to 4 years, around 2 crore learners, they were registered. And this particular process, it promotes course-based learning. In India, still the prevalent practice is that the people go for program-based learning. Now, this particular phenomenon, encouraging most of us that a person who wants to study agriculture, he can study agriculture, he can study Hindi, he can study technology, and that too from one portal at one particular point. That demarcation of the broad categories of the subjects, now it is being this interdisciplinary focus, this new education policy that is also being taken care of by this entire system.
Now, lastly, I would like to add one more thing, that is podcast. Podcast series. This is a new initiative which we have taken. And what it is giving us is advanced subject knowledge. And advanced subject knowledge, for which we have gone for only 9 sessions. And till this point of time, we could have 63,000 videos downloaded by the people. Because having a curricula, then it is to be updated, having advanced knowledge, then that too with this particular technology, that is also giving us good results. A few bullet points I would like to narrate as a roadmap that we are doing it, how to move ahead at a much faster pace. I'm not those bullet points in detail, but stating those points that will clearly tell us the way forward. Translation and development of online public audio programs in regional languages. This is giving us 8 languages or 20 languages. Then the online and ODL, the thin differences between the two. Now the pedagogy is almost the same. The 4-quadrant approach, even in ODL, also is the same. Material, the invisible teacher, the counselor, and the evaluation. It is also the same. So there is a need for integrated regulation. And here in this one important thing, especially in the Indian context, that the conduct of examinations, there we can even consider the pen and paper also. Pen and paper still in most of the disciplines, that area is the most of the learners, they are at least feel comfortable in answering the questions through pen and paper. Then this 40% credit transfer mechanism, and for which the mapping is going on. And UGC and AICT has done a great job during this COVID-19 period. They have mapped the relevant courses. Now it is for the universities that they have to pick up those courses, and this 40% credit transfer, 20% right now it is there. And if even right now existing universities, they are using only 1 or 2%. If they get it extended to 20% also, most of our SWAYAM courses which have been developed by the quality faculty, that can be used. We can even go for establishing open universities, because minimum infrastructure and lots of resources. Recently, Punjab has gone for it. The states of Jammu and Kashmir, Haryana, Kerala, and Jharkhand, they may also go for it. Recognition of prior learning. Already the people are knowing so many skills with them. And if we look at those skills and try to recognize it, an experiment it was being conducted earlier, but in Western countries, it is a popular phenomenon, but let us see that how we can go for it. And then 2 degree programs for which the UGC has come up recently, let the notification come. And through that, if a person could not clear 1 degree, at least he will clear the other degree, and thereby the GER it can further be enhanced. Agriculture and skill-based courses. Yes, here a lot of potential is there. And even the conventional institutions, they also use the agriculture lab or the skill lab outside the institution. The same is true for the open and distance learning institutions. So virtual labs that can be created, and these courses, they can also be run through the open universities, through the ODL institutions, the online institutions, and the conventional institutions. This is in brief, which I intend to share with all of you. Thank you very much. Thank you. Thank you, Professor. Now let me request Professor Minish Haji Thomas to be very brief, but we are running out of time. Yeah. As possible, without repeating what they have already said. Yes. Thank you very much, Professor Sarasabudde, and my fellow panelists and UGC chairman for this opportunity. I'll be sharing my slides if possible. So the topic is equitable use of technology for better reach in education, NEP 2020. NEP 2020, as we have been discussing from the beginning, is a progressive step towards equitable, holistic education and reach for every citizen of India. I salute the team who prepared this. I want to start with a quote. Technology can become the wings that will allow the educational world to fly farther and faster
than ever before. If we will allow it. So this is by a quote by Jenny from Texas A&M. So technology will be the wings. How can technology give wings to education, and how much can we go? My focus will be on flexibility, banking of credits, use of ICT, access, equity, and a little bit on collaborative research. Flexibility in curriculum. Rigid curriculum in higher education is easy for administration and faculty, whereas it's not preferred by many students with my 35 years of interaction with the student community. Majority of students choose courses in UG not out of passion. It is by peer pressure or parental pressure or market forces, etc. Once they realize their passion is not what they do, they lose interest. So they seek flexibility, and flexibility in multiple ways will bring in interest and creativity. All institutions should give flexibility. How? So my request to all the heads of institutions here is to think how we can give flexibility at institutional level. Then taking it beyond one institution is the credit bank. It's a beautiful concept in NEP. Credits for, can we also think of giving credits for reputed certifications, not just only for courses? This is, I'll be talking more about implementation. So credit bank in India, but implementation is going to be a challenge because compatibility of institutions, compatibility of courses, whether do we have, can we make a robust repository for the credit bank, because National Academic Depository we created, but how many institutions are already using it? It's a matter of concern. And exit options given in the NEP is a welcome change. But lateral entry options, what are the policies for the lateral entry options? This is also a question. Now, flexible curriculum encourages all-round development of students, and we have been doing it from 1964, from the inception of NIT Trichy, and we adopted flexible curriculum in 2014, and like many other institutions of higher learning, institutions of national importance like IITs and IIMs, we also give a lot of importance to co and extracurricular activities. And like Madam Sushma said in the morning, that an engineer would like to become a singer or a creative artist. I have seen the students from these institutions come out as well-rounded personalities because we offer flexibility in curriculum. For example, a student in electrical engineering in NIT Trichy can graduate with a major in electrical engineering with a minor in economics or English or management or whatever is his choice. And I've seen students going into astrology, creative writing, theater, music, social work, entrepreneurship as a profession after graduation. So it's a welcome change when we go for flexibility. Now, use of ICT in higher education, we have learned about classroom teaching as well as open and distance learning. But COVID-19 mandated us to go for open and distance teaching, a new term called ODT, where students and teachers were caught unaware. Now, how can we give wings to education by use of technology? I would say 4 things. You should have information on your fingertips, especially with student community. Things should be available on their mobile. So information on fingertips, we should reach masses, connectivity, bandwidth, more TV channels. What about the learning experience? How technology can augment the learning experience? Using augmented reality, epistemic games, we can augment the learning experience, whether it is arts or science or engineering or medicine, which is very important. And the last point is language of instruction, especially for India, multilingual. Duolingo has only Hindi for learning. Why can't we include more languages? So this, I'm glad NEP is taking, but we need to work on this to enhance this. Now, what are the challenges in use of technology? Again, for an institution, if we take, I would bring in 4 points. One is institutional readiness. It's very easy to say that you adopt technology, but are our institutions ready? Do we have an IT infrastructure backbone in every institution, whether it is
arts, science, law, or commerce, or medicine, or technology. And we need technical support. So institutional readiness is very important. Second is faculty readiness. Training in the use of ICT, e-content development, creation, e-delivery. We have to be proactive. We have to have innovative methods in teaching, especially in online classes. Do we have the gadgets for ICT enabled teaching for teachers? Who will provide, whether it's for classroom or even for remote teaching? And again, technical support. And the third is the student readiness. Are our students ready with connectivity and bandwidth? Very glad to hear Professor Ramamurthy saying that, it will be fruitful in 4 years. Our experience is already reaching nooks and corners of India. Gadgets, again, library readiness. If you have to go technology wise, our libraries has to be ready to give remote access. Overcoming challenges, the COVID-19 experience at NIT Trichy. Students were sent home in March. We have students from 28 states of India, and 10% of our students from abroad. We have around 7,000 students. Completing the semester teaching and conducting examination was a challenge. So I'll talk about all the four briefly. Institutional readiness. We developed our online study material portal, which was emphasized by my previous speakers. Students can download their material anytime, anywhere. Then we developed an online examination portal in May 2020, online student election portal. We have a new student council in place. And we are continuing our research process continuously, completely online. And the IT team support is invaluable. This is institutional readiness. Student readiness, we did extensive survey across the students community who are even in villages of India. The study material exam portal we created need connectivity for the minimum time. Even students with 2G connectivity were able to access it. Multiple modes of authentication for identity and impersonation we built into the system. And then faculty readiness, third point, training we did, most of our faculty are familiar, but still there is a need for e-content training, online exam, question paper setting. We set higher order thinking questions, no ready answers in books or internet, and multiple question papers, randomized question papers, etc., etc. And the library, we gave VPN access to ebooks and articles to students anywhere in the world. So our online examination portal, I'm very happy to report that our final year 1700 students wrote with 100% attendance. We declared the results, 98% attendance for lower semesters for around 4,000 students. And it is possible to reach nook and corner of the country with technology. We have proven it. Coming to collaboration and research, my last point, I already discussed that collaboration with sister institutions is the way forward, and industry and research. And signing an MOU is not enough. I think we should start with faculty and student exchange, and once we develop a rapport, then go for an MOU. And open your doors to industry. We have done it very effectively, and it's very successful. And we have decided that NIT Trichy will support only multi or interdisciplinary research. And with industry support, we have been able to create the Siemens Center of Excellence, another ISRO, Space Technology Innovation Center, etc. So my request is, please work with industry. That gives you a lot of strength. Open your doors to industry, and also enable your IT services in these four domains. Infrastructure at the institute, enable your faculty, enable your students, enable your library. We will succeed. And I have a few suggestions for a UGC ICT MOE. Madam, you can type in there so that everyone will see them. Sir, I just need half a minute. We have already exceeded by 3 minutes, madam. So you put it on the chat box. Huh? There are many people who have raised their hand that they want to comment, but like a quiz round, I would like to request Professor V.K. Tewari from IIT Kharagpur, Director of the Institute. You tell in one sentence, what is your take on this new education policy? Thank you, Professor Sastry Budhe, for giving me this opportunity.
I think this is one of the smartest thing which has been done by this particular government in the history of the post-independence era. Secondly, what I want to say is that, of course, all has been told by Director IIT Madras and the other two speakers. What I can add is that we as IITs, we must come up with our own platform for creating this sort of learning and the bandwidth at the delivery end. And I'm sure that the passion of the student has to be taken into consideration if we want to see that NEP succeeds. Thank you very much. Yeah, thank you, Professor Tiwari. Now, Professor Souvik Bhattacharya, you also say in one or two sentences about what is the policy take on from your side and from your university. Professor Souvik? Professor Souvik Bhattacharya, if he is not there, I think if he is not there, we can conclude this session. The most important thing is all the three experts, Professor Bhaskar Ramurthy, Nageshwar Rao, and Minish Chiji Thomas, have given excellent inputs about this particular topic. But interestingly, we at AICT have experimented two very important things in the COVID times, and I would like to mention them because that is the power of technology. Our entire regulatory process of giving approvals has been done everything online, including checking of the documents, visit to the campuses, virtual tour of the campuses, and finding out whether facilities are there or not. Everything video recorded, so there is no scope for any kind of what you say many times charges are leveled. That is not going to be possible. It's an absolutely transparent system. Secondly, we had the largest hackathon, which we conduct every year. This is the fourth edition. Three editions were all face-to-face mode. They were all coming, but this time 10,000 students we created a platform where we're using Slacks and all that. 40 virtual centers, several mentors, more than 1,500 mentors, jury, they all came online. So I think there is a power of technology which we can certainly make use of. And I'm sure for our Atma Bharat, Atma Nirbhar Bharat, Atma Vishwasi Bharat, Swabhimani Bharat, all our efforts in order to complement each other, if you do it, I'm sure that we will be able to achieve success through this new national education policy. Thank you very much. Namaskar. आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस तीसरे सत्र की समाप्ति पे मैं प्रोफेसर साह सुबोधे, चेयरमैन एआईसीटी को और आज जो हमारे बीच आपके साथ में तीन अन्य वक्ता जुड़े, प्रोफेसर नागेश्वर राव, डॉक्टर मिनी शाजी थॉमस और प्रोफेसर भास्कर रामामूर्ति, आप सभी का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। और हम तथा हमारे साथ जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग अलग अलग माध्यमों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो सभी आपके इस डिस्कशन से, टेक्नोलॉजी बेस्ड डिस्कशन से बहुत लाभान्वित हुए हैं। एंड वी रियली होप दैट this enriching and insightful discussion will go a long way in designing technology-enabled teaching learning process. Thank you so much. A brief announcement I would like to make at this point once again. A hashtag has been created, hashtag NEP Transforming India. So all the participants are requested to tweet their comments or photographs who are watching this conclave at hashtag NEP Transforming India. अब हम अपने अंतिम सत्र की ओर अग्रसर हो रहे हैं. So I invite all of you to the final session of the day. इस कॉन्क्लेव के अंतिम सत्र में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं. मंत्री जी हमारे साथ बहुत जल्दी जुड़ने वाले हैं. जैसे ही वो ज्वाइन करते हैं हम सेशन का शुभारंभ करेंगे.
हाँ सिंह साहब। प्रणाम सर। हाँ धोत्रे जी। नमस्कार जी जी प्रणाम सर। हाँ प्रणाम। भास्कर जी कैसे हैं? अच्छा हाँ नमस्कार, ठीक है सर। हाँ नमस्कार, सब अच्छे? सर आपकी अनुमति से इस सत्र का प्रारंभ कर रहे हैं। नमस्कार नमस्कार हाँ, सर। संजय जी। जी सर। तो आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। हम आज के इस कार्यक्रम में जो आज संगोष्ठी का एनईपी पे जो संगोष्ठी की गई है, उस संगोष्ठी का ये अंतिम सत्र है। इस सत्र में हम सभी का स्वागत करते हैं हमारे ऊर्जावान और यशस्वी माननीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी, राज्य शिक्षा मंत्री श्री संजय धोत्रे जी, सचिव उच्च शिक्षा श्री अमित खरे जी, यूजीसी के अध्यक्ष प्रोफेसर धीरेन्द्र पाल सिंह जी, इस सम्मेलन में भाग ले रहे सभी विद्वतजन, कुलपतिगण, शिक्षकगण, निदेशक, प्राचार्य एवं विद्यार्थियों और अन्य सब अतिथि वक्ता और जितने भी हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में अलग अलग माध्यम से लोग जुड़े हैं, उन सभी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा हम सभी को विदित है, उच्च शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में परिवर्तनकारी सुधार विषयक राष्ट्रीय सम्मेलन यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है। और जैसा आज सुबह माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि इस शुभारंभ के बाद में देश भर में वेबिनार, डिस्कशंस और अलग अलग चर्चाओं के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विस्तार होगा और इसके क्रियान्वयन में हमको सहायता मिलेगी। आज प्रातःकाल के उद्घाटन सत्र में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत ही सारगर्भित वक्तव्य हुआ, जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य, प्रक्रिया, परिकल्पना, विस्तार, आयामों तथा उससे होने वाले परिवर्तनकारी सुधारों की चर्चा की। उन्होंने विस्तार से यह भी बताया कि किस प्रकार यह शिक्षा नीति भारत के युवाओं के भविष्य का और राष्ट्र के आर्थिक, सामाजिक विकास और निर्माण में सहायक होगी। वास्तव में यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति नए भारत के निर्माण की भविष्यगामी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है और इसका क्रियान्वयन बहुत ही स्ट्रैटेजिक तरीके से किया जाना है। इसकी भी रूपरेखा के बारे में आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने चर्चा की और हम सभी खुशकिस्मत हैं कि हम इस व्यापक परिवर्तन के साक्षी बनेंगे और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में बहुत ही सक्रिय भूमिका निभाएंगे। आज के सत्रों में हमने माननीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी को भी सुना, राज्य शिक्षा मंत्री श्री संजय धोत्रे जी तथा अन्य विद्वानों को भी सुनने का अवसर मिला। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विभिन्न आयामों पर 3 टेक्निकल सेशंस आयोजित किए गए थे, जिसमें देश के शीर्षस्थ विद्वानों ने और विशेषज्ञों ने अपने अनुभव और ज्ञान और विचार साझा किए। सभी लोग इससे बहुत लाभान्वित हुए। जैसा हम सभी जानते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में वोकेशनल और प्रोफेशनल एजुकेशन पर काफी महत्व दिया गया है। इसके बारे में एम्प्लॉयबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए कई प्रावधान दिए गए हैं। So National Education Policy 2020 has many provisions for improving employability by integrating vocational education in higher education at graduate level. So today we are also going to release guidelines for higher education institutions to offer apprenticeship and internship embedded degree program. These guidelines are aimed to improve employability of general stream students, and for the first time, graduation program in general stream will be designed to offer apprenticeship as part of the degree program. This is also in line with the Union Budget of 2021 announcement, which mentioned that a large number of institutions will offer apprenticeship embedded degree courses. So UGC guidelines have been prepared और आज हम उसका माननीय मंत्री जी, माननीय राज्य मंत्री जी एवं अन्य अतिथियों के की उपस्थिति में, की गर्मामय उपस्थिति में इसका लोकार्पण भी किया जाएगा। इस समापन सत्र में आज की संपूर्ण चर्चाओं का सार संक्षेप भी हम उपस्थित अतिथियों से सुनेंगे
और इस दिशा में आगे बढ़ते हुए मैं सर्वप्रथम उच्च शिक्षा सचिव श्री अमित खरे जी को उनके संबोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। सचिव श्री अमित खरे जी। माननीय मंत्रीगण, उपस्थित सभी साथियों, आज हमने माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन प्राप्त किया और विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो निर्देश दिया कि इस नीति को कार्यान्वित करने के लिए रणनीति के लिए रोड मैप के लिए रिसोर्सेज, यानी एक सिलसिला जो माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं। निश्चित रूप से यूजीसी, एआईसीटीई और हमारे जो प्रमुख संस्थान हैं सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। आई एम not only hopeful, but we have to organize similar webinars at all levels so that the message of Honorable Prime Minister and the details mentioned in the policy reach every nook and corner of the country. मैं आपको बताना चाहूँगा कि नई नीति के क्रियान्वयन के लिए इम्प्लीमेंटेशन शेड्यूल काफ़ी हद तक बन चुका है और इसमें अलग अलग स्थानों पर जो वेबिनार होंगे, आपके जो इनपुट आएंगे, हर सब्जेक्ट पे वेबिनार किया जाएगा and your inputs will be really very helpful in designing the implementation plan and also the detailed schedule that we have for implementing various items of the policy. I once again thank UGC, Chairman Professor D.P. Singh, Secretary Shri Rajneesh ji, and all the distinguished participants who addressed us during the day. It was a very successful webinar organized by UGC. My thanks to D.P. Singh and his entire team. Also to Professor Manjul Bhargav, who took the pain to join us from USA. Although it must have been very difficult, it was a night time when we were having daytime here. A special thanks to Professor Manjul Bhargav. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद सचिव श्री अमित खरे जी। अब मैं हमारे राज्य शिक्षा मंत्री श्री संजय धोत्रे जी को आमंत्रित करूंगा आपके उद्बोधन के लिए। सभी को नमस्कार। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही सौभाग्यपूर्ण और महत्वपूर्ण है। आज हमारे सारे देश के शिक्षा से जुड़े हुए सभी वरिष्ठ, इनको हमारे प्रधानमंत्री जी ने नई शिक्षा नीति के बारे में मार्गदर्शन किया और अभी जो कार्यक्रम होने जा रहा उसमें उपस्थित हमारे मार्गदर्शक और भारत के शिक्षा मंत्री आदरणीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, चेयरमैन यूजीसी प्रोफेसर डीपी सिंह जी, अमित खरे जी सेक्रेटरी हायर एजुकेशन, रजनीश जैन जी, भास्कर जी डायरेक्टर आईआईटी मद्रास, उपस्थित सभी वरिष्ठगण, सभी विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल्स और सभी मेरे भाई बहन, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जो ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाने जा रही है उस पर बहुत गहरा मंथन हो रहा। उच्च शिक्षा लेने के पश्चात जॉब मार्केट में आने वाला युवक स्किल और इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट दोनों मैच होनी चाहिए, तभी रोजगार निर्मिति का कार्य असरदार होगा। एकेडमिक नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल स्किल्स भी इम्पोर्टेंट है। इसलिए यूजीसी द्वारा तैयार की गई अप्रेंटिसशिप, इंटर्नशिप
एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम संबंधी गाइडलाइंस आज जारी की जा रही है। यह बहुत खुशी की बात है। यह मेरा मानना है कि विद्यार्थियों को रोजगार क्षमता को बेहतर बनाने हेतु एक नई दृष्टि से आवश्यकता है, जिसका रोजगार परक पाठ्यक्रम का समावेश हो। उच्चतर शिक्षा को उद्योग और कार्य की आवश्यकताओं के साथ जोड़ने में अप्रेंटिसशिप की प्रमुख भूमिका होती है। इस दिशा निर्देश का लक्ष्य स्नातक के सामान्य डिग्री कार्यक्रम कर रहे विद्यार्थियों की रोजगार क्षमता में सुधार लाना और उच्चतर शिक्षा प्रणाली और उद्योग के बीच पारस्परिक संवाद और सक्रिय संबंध को भी प्रोत्साहन देना है। आशा करता हूं कि यह रोजगार क्षमता के अंतर को दूर करने की दिशा में आवश्यक कदम उठाने में मददगार होगा। दिस डिग्री प्रोग्राम will focus on industry-led, practice-oriented, and steps toward bridging the gap between employment and employability. I request our universities to come forward to introduce apprenticeship, internship, embedded degree program for the general degree courses in large number to create a strong ecosystem of work-based experience along with academic credits. और अभी हमारे सचिव अमित खरे जी जो बात कर रहे थे, जिस तरह प्रधानमंत्री जी ने हमें आदेश दिए कि इसका हमको ये नीति की एक रणनीति बनाना पड़ेगा, उसका रोड मैप बनाना पड़ेगा, और इसलिए आज जो एक वेबिनार हुआ उसी तरह हमको अलग अलग क्षेत्रों में भी इसको विकेंद्रित रूप से करना पड़ेगा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे मार्गदर्शक आदरणीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी के नेतृत्व में, इनके मार्गदर्शन में ये कार्य हम यथाशीघ्र शुरू भी करेंगे और उसको टाइम बाउंडेड मैनर में हम पूरा भी करेंगे। मैं आज ये गाइडलाइंस जो प्रस्तुत हुई इसके लिए हमारे यूजीसी चेयरमैन डीपी सिंह जी, रजनीश जी, इनको भी बधाई देता हूं और आपको सबको धन्यवाद देते हुए और शुभकामनाएं देते हुए मैं मेरे शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारे माननीय शिक्षा मंत्री और माननीय राज्य मंत्री से अनुरोध करूंगा कि अब आप हमने जिस अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड गाइडलाइंस को डेवलप किया है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन का ही एक पहलू है, उसको लोकार्पित करने के लिए आप हमारी इस अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड गाइडलाइंस के डॉक्यूमेंट को लॉन्च करेंगे। धन्यवाद जैन साहब, धन्यवाद। थैंक यू सर। अब मैं हमारे माननीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल जी से सादर अनुरोध करूंगा कि वो अपने आशय वचन से हमें उद्बोधित करें। आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित मेरे सहयोगी और जो बहुत सरल और प्रखर व्यक्तित्व के धनी हैं, श्री संजय धोत्रे जी, हमारे सचिव श्री अमित खरे जी, और जिनके रात दिन अथक प्रयासों से हम नई शिक्षा नीति को सामने ला पाए हैं, और यूजीसी के चेयरमैन
धीरेन्द्र मधुर जी, प्रोफेसर डीपी सिंह जी, धीरेन्द्र मधुर जी ही मैं बोलता हूँ इनको। तो इनके और इनकी टीम के भी बहुत प्रयास से जो आज ये नई शिक्षा नीति 2020 आ पाई है, और हमारे अन्य सभी यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि भास्कर जी सहित बहुत सारे हमारे आईआईटीज के निदेशक और विश्वविद्यालयों के सभी कुलपतिगण और सभी हमारे वरिष्ठ प्रोफेसर और प्रिंसिपलगण सब जुड़े हुए हैं, शिक्षाविद। मुझे इस बात की खुशी है कि आज प्रधानमंत्री जी ने जिस बात को कहा है कि जो ये जो नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, पूरे देश के अंदर बहुत अच्छा परिवेश है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि जिस तरीके से हमारे सभी कुलपतिगण ने, निदेशकगण ने, पूरी टीम ने, इस शिक्षा विभाग के इस परिवार ने इस नई शिक्षा नीति को अध्ययन करके उस पर लेखों को लिखा है, सोशल मीडिया में लिखा है। मैंने सभी लोगों के लेखों को पढ़ा है और मुझे गौरव महसूस होता है कि हमारी जो ये टीम है, जो जिसके कंधों पर इस देश की महत्वपूर्ण शिक्षा का भार है, जो भारत के भविष्य के निर्माण में एक शिल्पी का काम कर रहे हैं, प्रेरक का काम कर रहे हैं, वो लोग इस शिक्षा नीति से बहुत अच्छे से परिचित ही नहीं है, बल्कि लोगों तक भी लेख के माध्यम से और अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, भिन्न भिन्न माध्यमों से आपने जिस तरीके से इस नई शिक्षा नीति को लोगों तक ले जाने का काम किया है, सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं। और मुझे बहुत गौरव है, महसूस होता है कि जैसे मैंने पिछली बार भी कहा कि इस शिक्षा के परिवार ने विषम विपरीत परिस्थितियों में चुनौतियों का मुकाबला करके उसको अवसरों में तब्दील किया है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण और उदाहरण कोरोना के संकट काल से जिस तरीके से आप लोग गुजरे हैं और हर चुनौती का मुकाबला करके और आप एक योद्धा की तरह आगे बढ़ते जा रहे हैं, ये छोटी बात नहीं है। हिंदुस्तान 130 करोड़ लोगों का देश और अमेरिका की कुल आबादी जितनी नहीं है उससे ज्यादा यहाँ पर 33 करोड़ से भी अधिक छात्र और छात्राएं हैं। इनको संभाल पाना, जबकि बच्चे घर पर कैद हो गए हों, छात्र छात्राएं, और ऐसी परिस्थिति में उनको ऑनलाइन पर लेकर के आना, ये छोटी और सहज बात नहीं है। ये पूरी दुनिया में एक अद्भुत उदाहरण आपने प्रस्तुत किया है। आज सुबह हमारे प्रधानमंत्री जी का हमको मार्गदर्शन मिला है और जो उनको आपको मार्गदर्शन मिला है उस मार्गदर्शन के अनुरूप मुझे भरोसा है कि आप उस दिशा में लगातार आपने मन भी बना दिया होगा, काम भी करेंगे। और जिस तरीके से आज दिन भर ये समापन सत्र आप कर रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा था कि समग्र बहु विषयक और अत्याधुनिक शिक्षा के बारे में प्रोफेसर धीरेन्द्र पाल सिंह जी, अध्यक्ष यूजीसी की अध्यक्षता में, प्रोफेसर एम.के. श्रीधर जो सदस्य भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रारूप समिति के, और वक्ताओं में प्रोफेसर नजमा अख्तर, कुलपति जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली, वो भी वक्ता के रूप में थे, और प्रोफेसर ई सुरेश कुमार, कुलपति इफ्लू हैदराबाद। एक सत्र पूरी तरीके से विभिन्न वक्ताओं, सहयोगियों के विचारों के साथ इस महत्वपूर्ण विषय पर आपने विचार विमर्श किया है। मुझे भरोसा है कि डीपी सिंह साहब जो लोगों के विचार आए होंगे इस दिशा में, उसको संग्रहित करके और लोगों तक भी पहुंचेंगे। अनिल सहस्त्रबुद्धे जी भी अभी जुड़े हैं, वो भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। और उसके बाद जो फिर तीसरा सत्र हुआ है वो गुणवत्ता युक्त अनुसंधान को उत्प्रेरित करने जैसे विषय पर हमारी प्रोफेसर के विजय राघवन जो प्रधानमंत्री जी के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं, उनकी अध्यक्षता में हुआ है। और प्रोफेसर मंजुल भार्गव इसमें हमारे साथ अमेरिका से जुड़े जो शिक्षा नीति के सदस्य के रूप में रहे हैं, और वक्ताओं के रूप में प्रोफेसर भूषण पटवर्धन जी जो उपाध्यक्ष हैं हमारे यूजीसी के, प्रोफेसर अनुराग कुमार जो पूर्व निदेशक IISc बेंगलुरु के हैं, उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए, और तमाम सहयोगियों ने
उस बिंदु को बहुत आगे बढ़ाया, क्योंकि गुणवत्तायुक्त अनुसंधान को उत्प्रेरित करना ये आज की परिस्थितियों में हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसके बाद जो अगला सत्र था, वो अगला सत्र शिक्षा के उचित विस्तार के लिए प्रौद्योगिकी का न्याय सम्मत प्रयोग, इस दिशा में जो AICTE के हमारे चेयरमैन हैं प्रोफेसर अनिल सहस्रबुद्धे, उनकी अध्यक्षता में प्रोफेसर भास्कर राममूर्ति जी निदेशक IIT मद्रास और प्रोफेसर नागेश्वर राव कुलपति इग्नू और डॉक्टर मिनी साजिद थॉमस निदेशक NIT तिरची, इनके पारस्परिक चर्चा में जो ये अलग अलग सत्र स्थापित हुए हैं, इस पे विचार विमर्श हुआ है। निश्चित रूप में आज के संदर्भों में, जबकि भारत देश की आजादी के बाद नहीं बल्कि सैकड़ों की गुलामी के बाद, सैकड़ों वर्षों की गुलामी के बाद अपने प्रकार की भारत केंद्रित और ज्ञान विज्ञान अनुसंधान के क्षेत्र में विश्व की प्रतिस्पर्धा पर आने वाली अपनी शिक्षा नीति को लेकर के आ रहा है। ऐसे वक्त पर इन महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करना बहुत ही महत्वपूर्ण था, और जिसको प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है। प्रधानमंत्री जी को यदि विशेष करके जो उनका प्रौद्योगिकी पर ज्यादा हमेशा ध्यान रहा है, उन्होंने ये कहा है कि ज्यादा से ज्यादा प्रौद्योगिकी को हम कैसे करके वो कर सकें। इस बात की भी पूरे देश के अंदर खुशी है कि अब छात्र अपने बारे में निर्णय लेगा, हम उस पर थोपेंगे नहीं। वो जिस भी विषय को ले सकता है वो ले करके और आगे बढ़ सकता है। और उसको जो क्रेडिट बैंक है, इसका भी प्रचार थोड़ा सा करें कि उस छात्र के हित में बहुत बड़ा निर्णय हुआ है ये, और ये नीति से उसको बल मिलेगा, उसका समय बर्बाद नहीं होगा और उसका मन कमजोर नहीं होगा। उसको जरूरत पड़ती है कि एक बार छोड़ करके उसको वो समय में भी चाहे वो उसको सर्टिफिकेट मिले, डिप्लोमा मिले, डिग्री मिले, लेकिन यदि बीच में छोड़ के जाता है तो दोबारा वो अपने क्रेडिट के आधार पर वो अपनी शिक्षा को शुरू कर सकता है। उसके भविष्य के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। तो ये जो उसके मन के अंदर एक नया उत्साह आएगा, उमंग आएगा, वो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। शोध और अनुसंधान के क्षेत्र में भी हमेशा प्रधानमंत्री जी ने बहुत गंभीरता से उस बात की चिंता की है कि अभी हमको बहुत तेजी से बढ़ना है, क्योंकि जब जब भी हम अपने इन संस्थानों का विश्व के फलक पर, चाहे वो QS रैंकिंग हो, टाइम्स रैंकिंग हो या अन्य जो भी मानक हैं, वहाँ कहीं ना कहीं हम शोध और अनुसंधान की दिशा में कहीं अभी कमजोर हैं। और मुझे भरोसा है कि हम उस क्षेत्र में भी अपनी ऊंची उड़ान को भरेंगे और NRF जो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनेगा, वो इसका रास्ता बहुत तेजी से मजबूती से के साथ वो आगे बढ़ाएगा। जो प्रधानमंत्री जी की चिंता रही है, और वही मालवीय जी की भी हमेशा चिंता थी। मैंने विवेकानंद को पढ़ा, चाहे मौलाना आजाद को पढ़ा, चाहे देश के जो राष्ट्रपति रहे हैं, पूर्व राष्ट्रपति राधा कृष्णन जी रहे, सब ने इस बात पर जोर दिया कि जो भी व्यक्ति, जो भी समाज अपनी जड़ों से कटता है वो अधिक दिनों तक जीवित नहीं रह सकता। और उन्होंने कहा था कि ये जो अपनी जड़ों से हटता है, कटता है, वो कटी हुई पतंग की तरह होता है कि वो आसमान में तो दिख रहा है, लेकिन वो किस कगार में जाकर के गिरेगा उस कटी हुई पतंग को भी पता नहीं है। लेकिन जमीन पर खड़े होकर के आसमान को छूने की जो अभिप्सा है, वो हमारी नीति है, वो हमारी शिक्षा नीति है। इसलिए मूल्य परक जो शिक्षा है, यदि जब हम ये कहते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर इस सदी की ये सबसे खूबसूरततम शिक्षा नीति है, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा मील का पत्थर जो जीवन मूल्य है, जो मानवीय मूल्य है। क्योंकि जिस आदमी की प्रगति कर रहा है, यदि उसमें संवेदना ही नहीं रहेगी, मानवता ही नहीं रहेगी, उसके जीवन मूल्य ही नहीं रहेंगे, तो हम मशीन बना रहे हैं उसको। और इसलिए जो हमारी दुनिया के अंदर खूबसूरती रही है, जिसने हमें वसुधैव कुटुंबकम की बात की है, जिसमें सर्वेभवन्तु सुखिनः की बात की है, जिसमें हम असतो मा सद्गमय की बात करते हैं, जिसमें ज्योति की ओर जाकर के अंधेरे को मिटाने की बात करते हैं, ये सहज सामान्य बात नहीं है। इसलिए जो हमारे प्रधानमंत्री जी की भी चिंता रही है कि हम पूरे विश्व के फलक पर जाएं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा में नंबर 1 आए, लेकिन अपनी जड़ों को न छोड़ें, अपने को भूले नहीं,
अतीत को वर्तमान से जोड़ना, जो हमारा ज्ञान विज्ञान अनुसंधान है पीछे से, उस अनुसंधान ज्ञान को वर्तमान से जोड़ करके और भविष्य के नवाचार के साथ छलांग मारना, ये बहुत जरूरी है। यदि इस पूरी शिक्षा नीति का मूल सूत्र है, क्योंकि कोई भी देश, कोई भी व्यक्ति किसी की नकल पर नंबर 1 नहीं हो सकता है। उसकी कुछ तो अपने देने की अभिप्सा हो, कुछ तो ताकत हो उसको अपने देने की, और हमें अपनी देने की ताकत है पूरी दुनिया को। तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय इस देश का प्रमाण है कि वो सारी दुनिया को देने की क्षमता रही है। आज भी हमारा भास्कराचार्य हो वैज्ञानिक, वो चाहे वो पतंजलि हो, चाहे भाषा के क्षेत्र में हो, और चाहे विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे गणित के क्षेत्र में आर्यभट्ट हो, मैं सोचता हूं कि वो वैज्ञानिक हमारे पास थे, अभी भी हमारे पास वो धाती है जिसका विश्लेषण करने की जरूरत आ पड़ी है, जो पूरी दुनिया की और मानवता के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। और इसलिए ये अपनी जड़ों से जुड़े रहना ये बहुत जरूरी है। और भारत में श्रेष्ठ क्या है और उसको दूसरे को कैसे करके हम दे सकते हैं, क्योंकि हम तो वसुधैव कुटुंब वाले लोग हैं, हम दूसरों के लिए देने के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं। तो इसलिए रोजगार से भी कैसे इन सब चीजों को जोड़ा जा सकता है, जो उनकी चिंता रही है कि पुरातन, जो पुरातन है और श्रेष्ठ है उसको न छोड़ें, और पुरातन को नूतन से जोड़ करके ज्ञान विज्ञान अनुसंधान पारंपरिक कला जो हमारे धरोहर हैं उनका किस तेजी से समन्वय करके और आगे बढ़ा सकते हैं हम लोग, यह हमारे लिए बहुत जरूरी है। यहाँ पर हमको अपना मन भी बनाना पड़ेगा और मन बना करके उस दिशा में दौड़ना भी पड़ेगा। मुझे इस बात की भी खुशी है कि मैं पीछे से देख रहा था, पिछले 5 सालों में यदि देखेंगे तो हम 2014 में जो भारत रैंकिंग इनोवेशन के उसमें भी थे हम, तो 81 नंबर पर थे। इस समय हम 52 स्थान पर वहां पर हैं। हमने वहां भी बहुत छलांग मारी है। उच्च शिक्षा के सकल नामांकन में हम यदि 14-15 को देखें कि 24.3% थे, जो हम 26.3 से 27 लगभग हो गए हैं। 14-15 में हम लोग जो विश्वविद्यालयों की संख्या हमारी 711 थी, आज 1028 से भी अधिक विश्वविद्यालय हमारे इन 4-5 सालों में हुए हैं। और IIT के क्षेत्र में मैं सोचता हूं कि पहले जो छात्राओं की संख्या थी, बालिकाओं की संख्या थी 15-16 में 1871 थी, और ये 1871 आज बढ़ करके ये 19-20 में 3411 हो गई है। तो बालिकाओं की शिक्षा में भी हमारी गवर्नमेंट पूरी ताकत के साथ और बड़ी पारदर्शिता के साथ आगे आ रही है। मैं सोचता हूँ चाहे शिक्षकों के उसका विषय हो कि शिक्षकों के 15-16 में तो 5410 की तुलना में इस समय 1,75,301 शिक्षकों को जो है मालवीय मिशन से प्रशिक्षित किया, और अभी ये अभियान जारी है कि जो अभी नया कार्यक्रम दिया है और UGC ने लगातार इस दिशा में किया, AICTE ने भी लगातार नए अभिनव प्रयोग किए हैं, कार्यक्रम दिए हैं। IO की दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, और ये हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण संस्थाएं होंगी जो सारे विश्व के शिखर पर हिंदुस्तान का नाम ऊंचा करेंगी। हीफा हमारे लिए एक हमारे सरकार ने हमको एक हीफा हमको अवस्थापनाओं के विकास की दिशा में जो 2022 तक 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश उसमें होगा, वो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी आधारशिला होगी। स्टडी इन इंडिया के तहत में देख रहा था 18-19 में कुल 780 छात्र थे, आज 3164 साल 19-20 में भर्ती हुए, और इस समय लगभग 5000 से भी उसकी संख्या ज्यादा हो गई थी। लेकिन अब तो जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, हमने स्टडी इन इंडिया और स्टे इन इंडिया इन दोनों चीजों को किया है। जो 8 लाख छात्र बाहर जाता है, आखिर कौन सी कमी है? मैं समझता हूं कि हमारे संस्थान बहुत सक्षम संस्थान है, एक परिवेश बनाने की जरूरत थी, और अब जो कोई कमी रही है वो कमी इस नई शिक्षा नीति से आने से वो कमी भी दूर हो गई है। इसलिए यहाँ की जो प्रतिभा और पैसा, ये दोनों जो बाहर चले जाते हैं, संभवतः लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपया प्रति वर्ष हिंदुस्तान का बाहर जाता है। जो प्रतिभाएं बाहर जाती हैं फिर लौट करके नहीं आते हैं। इस देश को दोहरी क्षति होती है, उनकी प्रतिभा का उपयोग पूरी दुनिया कर रही है। अब जब यहाँ रोकेंगे तो यहाँ का पैसा भी बचेगा, यहाँ रहेगा, और यहाँ की प्रतिभा भी रहेगी, और उन प्रतिभा के आधार पर देश विकसित
ये नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपने शिखर पर पहुंचने के लिए किया। मैं अभी देख रहा था कि चाहे वो भारतीय प्रबंधन संस्थानों को 7 से लेकर के इन 5 साल में 16 करने का विषय रहा हो, बहुत सारे इन 5 वर्षों में जिस तरीके से आमूलचूल परिवर्तन हुआ है, और अब ये जो नई शिक्षा नीति आ रही है ये भी एक नए इतिहास को रचेगी, मेरा भरोसा है, क्योंकि इसकी पूरी दुनिया में जिस तरीके से इस समय चर्चा हुई है, और शायद ये पहली ऐसी शिक्षा नीति है 99% लोगों ने इसकी तारीफ की है। 99% लोगों को लगा कि अब हिंदुस्तान में कुछ और होने वाला है। ये छोटी बात नहीं है, और इसलिए आप सब लोगों को मैं इस बात की बधाई देना चाहता हूं। आज जो ये इसका लोकार्पण किया है यूजीसी के चेयरमैन साहब को, उनके सचिव को, उनकी पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूं। ये अप्रेंटिसशिप, इंटर्नशिप, युक्त डिग्री कार्यक्रम में हमारे माननीय मंत्री जी संजय जी ने बहुत विस्तार पूर्वक इस बारे में प्रकाश डाला है। मैं जरूर चाहूंगा कि इसका उपयोग ज्यादा से ज्यादा हो, और ये जो इसके जो लाभ हैं, जिन छात्रों को इसका लाभ मिलना है और वहां तक इसकी पहुंच हो, वहां तक इसकी सूचना हो। मैं एक बार फिर इस समापन अवसर पर बस ये इतना कहना चाहता हूं कि इसके बाद जो एक आगे 3 महीनों के लिए पूरे देश के अंदर NEP होना चाहिए, पूरे देश के अंदर केवल और केवल शिक्षा होना चाहिए। यदि 33 करोड़ छात्र हैं तो 33 करोड़ छात्र का मतलब यदि माता पिता भी करे तो वो 66 और 66 और 33 99 करोड़ होते हैं। 100 प्रतिदिन आप 100 करोड़ लोगों को स्पर्श करते हैं। ये 3 महीने तक आप केवल देश के अंदर क्या है शिक्षा, ऐसा माहौल हो जाना चाहिए, आधा मन वैसे ही बदल जाना चाहिए। और मैं अमित जी को कहूंगा कि एक बार इस पूरी टीम के साथ बैठ करके, जिस पर आर्थिक बोझ नहीं पड़ना है, आपने प्लान बनाया भी है, आपके दिमाग में भी है कि जिस पर आर्थिक बोझ नहीं पड़ना है, जो नई शिक्षा नीति में लेके आए हैं, जो प्रशासनिक आदेशों से और पारस्परिक समन्वय से है, जो बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। मैं संजय जी से कहूंगा कि अमित जी के साथ बैठ करके कुछ इन बिंदुओं पर चर्चा भी करेंगे, और फिर हम लोग जब भी अमित जी एक टीम बना देंगे, ताकि हम जल्दी से जल्दी देश को ये बताना चाहते हैं कि हम नीति लेकर के ही नहीं आए, हम उसकी रीति भी लेकर के आए हैं, उसका रास्ता भी लेकर के आए हैं। और जैसे कि अमित जी ने बताया, अमित खरे जी ने बताया कि हम लोग इसके क्रियान्वयन का बिल्कुल हमने रोड मैप तैयार कर रखा है, अब वो दौड़ना है हमने उस पर। और प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात की चिंता की कि सबको, किसी ने भी हमारी इस नीति पर कोई सवाल नहीं किया। सबके मन में ये अच्छा क्रियान्वित होता है कि नहीं होता है, क्रियान्वित करने के लिए ही हम नीति को लाई हैं। मुझे भरोसा है हमारे प्रधानमंत्री जी के संरक्षण में हमारी ये पूरी टीम ये साबित करेगी कि यदि हम नीति लाते हैं तो हम उसको क्रियान्वित भी करते हैं। आज सुबह में चर्चा कर रहा था कि जो 1986 में नीति बनी थी, 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन 92 में हुआ। जब 1986 में नरसिंहा राव जी जब शिक्षा मंत्री थे, उस समय उस नीति को लाया गया, लेकिन मैं उसका ड्राफ्ट देख रहा था कि उसके बाद जो 92 में उसका क्रियान्वयन का रास्ता अपनाया गया, का मतलब 86 से 86, 87, 87, 88, 88, 90, 90, 91 तक, इन 5 सालों तक, 4 सालों तक किसी ने उसकी चिंता ही नहीं की। अब मैं ये समझता हूँ वक्त हमारे पास कम है, मैदान हमारे पास खाली है, लोगों के मन बने हैं, व्यवस्थाओं की दृष्टि से हम क्या क्या समन्वय कर सकते हैं, कितने कम समय में कर सकते हैं। जैसे प्रधानमंत्री जी ने चाहा कि हर कॉलेज, हर विश्वविद्यालय, जो विश्वविद्यालयों के अंदर जितने कॉलेज हैं, विश्वविद्यालय इसको तय करे कि वो अपने हर विभाग में सेमिनार करे। अच्छा है, चर्चा होनी चाहिए, परामर्श होना चाहिए। हम एक नई दिशा में नई छलांग मारने के लिए तैयार हैं, सबको मन से तैयार होना चाहिए। और इसलिए पूरा विश्वविद्यालयों के अंदर सेमिनार शुरू हो जाए, महाविद्यालयों के अंदर सेमिनार शुरू हो जाए, और राज्यों के भी अंदर जो है फिर उस तरीके से सेमिनार शुरू हो जाए। मैं समझता हूं जिस दिन ये हो जाएगा, आदि समस्याओं का समाधान वही हो जाएगा, और बाकी जो
क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी का हमको आशीर्वाद है और उन्होंने आज हमको आश्वासन भी दिया, मैं चट्टान की तरह आपके पीछे खड़ा हूं, आपके साथ हूं। तो प्रधानमंत्री जी का ये कहना कि इस नीति को क्रियान्वित करने के लिए मैं पूरी ताकत के साथ आपके साथ खड़ा हूं, ये हमारा सौभाग्य है कि उनका हमेशा हमको मार्गदर्शन मिल रहा है। आज सुबह से लेकर के और अब तक जो भी चर्चाएं हुई हैं वो देश के भविष्य के निर्माण की आधारशिला बन करके रहेंगे, ऐसा मेरा भरोसा है, क्योंकि आप सब लोगों ने परामर्श किया, विचार विमर्श किया और इसको वहां तक क्रियान्वित करने की तो आधारशिला ही आप हैं। आप सब लोगों का मन बन करके किस तेजी से के साथ हमने इसको वहां तक लेकर के जाना है। जो जो संस्थान है हमारे IIT हैं, IIIT हैं, आईसर है, NIT है, SPA हैं, हमारे विश्वविद्यालय हैं, इन सभी बड़े संस्थानों को क्या क्या वो अपने क्षेत्र में कर सकते हैं। यदि 1 महीना 1.5 महीने के अंदर वो बता दें हमको कि 1.5 महीने के अंदर वो इसकी समीक्षा करें, बैठक करें और उसके बिंदुओं को तय करें कि हाँ, जो नई शिक्षा नीति में ये सुनिश्चित हुआ है, इस नई शिक्षा नीति में हम ये इतने समय में कर सकते हैं, जिस पर बहुत ज्यादा अवस्थापनाओं की जरूरत नहीं है, जिसमें बहुत ज्यादा धन की जरूरत नहीं है। और मुझे भरोसा है कि मैं जब भी अपने इस पूरे परिवार के मुखिया लोगों के साथ बातचीत करता हूं तो मुझे गौरव महसूस होता है कि जब भी जिसको भी जो काम सौंपा, जो भी बताया, संकेत मात्र से सब लोग एकजुट होकर के, और इस समय मैं DP सिंह साहब से बात कर रहा था कि हमारा जो ये परिवार है, शिक्षा का परिवार पूरे भारत का एकजुट है और उसने अभी एकजुटता दिखाई है, हर दिशा में एकजुटता दिखाई है। तो मैं समझता हूँ ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि हमारा जब परिवार एक रहता है, एकजुट रहता है, तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। जिस परिवार में एकजुटता नहीं रहती है, मिशन मोड नहीं रहता है, वो परिवार बहुत जल्दी टूटता है। हमारा परिवार मजबूत है और वो परिवार है जो पूरे देश को दिशा देने की ताकत रखता है, विषम परिस्थितियों में भी मार्ग निकाल सकता है, और जिसको भारत के भविष्य के निर्माण के लिए आज लोगों ने, सरकार ने हमको चिन्हित किया है। हम यहाँ पर बैठे हुए हैं कि हम अपने पीढ़ी का निर्माण करेंगे, राष्ट्र, हमको इससे बड़ा सौभाग्य क्या मिल सकता है कि हम राष्ट्र के निर्माण की दिशा में आधारशिला बन करके काम कर रहे हैं, जुटे हुए हैं उस दिशा में। मैं एक बार फिर आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी शुभकामना। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी, आपके उद्बोधन के लिए, आपके मार्गदर्शन के लिए, और जो विश्वास आपने हम लोगों पे जताया है, हम उम्मीद करते हैं कि आपके विश्वास को पूरा करेंगे और एक समयबद्ध तरीके से, चरणबद्ध तरीके से इस नीति के क्रियान्वयन की हम पूरी पहल करेंगे। और हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि बहुत ही शीघ्र, अल्प समय में ही इसके क्रियान्वयन की पहल शुरू हो जाएगी। इसके क्रियान्वयन की पहल वास्तव में आज आपके ही कर कमलों द्वारा शुरू हो गई है। जिस तरीके से आपने आज ये अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड गाइडलाइंस का लोकार्पण किया है, यही इसके क्रियान्वयन की दिशा में ही पहला कदम है जो वोकेशनल एजुकेशन को आगे बढ़ाएगा। अब मैं इस कार्यक्रम के अंत में हमारे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग परिवार के अध्यक्ष प्रोफेसर DP सिंह को साहब को आमंत्रित करूंगा। मैं उसके पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट मैं पुनः करना चाहूंगा। हमने ट्विटर पे एक हैशटैग क्रिएट किया है, #NEP ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो सभी पार्टिसिपेंट, जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं इस समय, आप सभी से अनुरोध है कि इस हैशटैग पे अपना कमेंट ट्वीट करें और जो फोटोग्राफ्स देख रहे हैं उसको भी ट्वीट करें। I once again request all the participants to tweet their comments or photos who are watching this conclave at the hashtag NEP Transforming India. अब मैं UGC के अध्यक्ष प्रोफेसर DP सिंह साहब को उनके क्लोजिंग रिमार्क्स और वोट ऑफ थैंक्स के लिए सादर आमंत्रित करता हूँ। माननीय मंत्री जी, माननीय राज्य मंत्री जी, माननीय सचिव जी, हमारे साथ में देख रहा हूं कि AICT के हमारे सम्मानित चेयरमैन प्रोफेसर अनिल सचपुत्री जी, और पूरा रात्रि जागरण करके हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रोफेसर मंजुल भार्गव जी, और पूरे देश भर के संस्थानों के अभी भी हमारे कुलपति साथीगण, प्राचार्यगण, शिक्षाविद, विभिन्न स्टेटरी बॉडीज के मेंबर सेक्रेटरी और चेयरपर्सन, ये सभी जुड़े हुए हैं। मैं सबसे पहले तो आप सभी का
इस सत्र में भी अभिनंदन करता हूँ और साधुवाद भी देता हूँ। मैं तो माननीय मंत्री जी का मार्गदर्शन हमको मिल चुका है और उससे पहले माननीय राज्य मंत्री जी ने बहुत अच्छे तरीके से जो हमारी ये गाइडलाइंस यूजीसी की निकली है, जिसके आपके कदमों के द्वारा आज इसका लोकार्पण हुआ है प्रदेश के सामने, और जैसा कि हमारे प्रोफेसर रजनीश जैन साहब ने बताया कि इस तरह से क्रियान्वयन जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने सुबह आह्वान किया है और उसकी शुरुआत बिल्कुल हो गई है और ये गाइडलाइंस अब देश को समर्पित है और आज ही ये हमारी वेबसाइट पे अपलोड भी हो जाएगी, जिसका लाभ पूरे विश्वविद्यालय महाविद्यालय उठा सकते हैं और इसका पूरा रोजगार पर शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयबिलिटी, इस पर बहुत बड़ा इसका रोल रहेगा इन तरह की गाइडलाइंस का। अमित खरे साहब का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, वो बड़े फोकस्ड और बहुत ही टैलेंटेड हमारे ऑफिसर हैं और बहुत कम शब्दों में काफी कुछ चीजें कहते हैं, बताते हैं, करते हैं, तो उनका मार्गदर्शन हमारे पूरे इसमें रहा है वेबिनार के। माननीय मंत्री जी, मैंने कुछ घंटे पहले ये जानकारी हासिल करने की कोशिश की कि हमारे कितने लोगों ने सोशल मीडिया पे आज का ये कार्यक्रम देखा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन हुआ तो लगभग 3 घंटे पहले जो हमको जानकारी मिली है वो 8,49,000 लोग इसको केवल सोशल मीडिया पर देख चुके हैं, जो कि ट्विटर है, फेसबुक है, यूट्यूब है। बाकी डीडी न्यूज और दूसरे चैनल्स के माध्यम से तो करोड़ों लोगों ने देखा होगा। तो ये दर्शाता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति और माननीय प्रधानमंत्री जी का यशस्वी नेतृत्व, आपका कुशल मार्गदर्शन, राज्य मंत्री जी का सहयोग, ये सब मिलकर के भारत की शिक्षा का जो एक नया इतिहास लिखा जा रहा है उसके साक्षी बन रहे हैं और लोगों को माननीय मंत्री महोदय, तो मेरी सब लोगों कुलपतियों से, महाविद्यालय के प्राचार्यों से, शिक्षाविदों से बहुत चर्चा होती है। एक लोगों में विश्वास जागृत हुआ है, लोगों को लग रहा है कि जो कुछ कहा जा रहा है वो किया जा रहा है, क्योंकि लोगों ने महसूस किया है कि कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर रहता है और इसलिए बहुत सी चीजें कागजों पर होती है और वो क्रियान्वित नहीं हो पाती। लेकिन जैसा कि आपने आह्वान किया है, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी सुबह कहा है, हम लोग पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं और समयबद्ध तरीके से इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो विभिन्न पहलू हैं उनके क्रियान्वयन की दिशा में जो कुछ भी अपेक्षित है वह हम करने की कोशिश करेंगे और पूरे डेडिकेशन के साथ करेंगे, पूरे समर्पण भाव के साथ करेंगे, क्योंकि ये राष्ट्र की पीढ़ियों के निर्माण के लिए, नए भारत के निर्माण के लिए, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए और विश्व में इस भारत को एक राष्ट्र के रूप में, एक विकसित राष्ट्र के रूप में, एक पूरी तरह से संपन्न और समग्र ज्ञान से ओतप्रोत जो राष्ट्र है उसके रूप में स्थापित करने की बात है। और इसमें पूरा देश, जैसा कि आपने कहा है कि 99% लोगों ने इसके बारे में, और सही में चाहे वो ट्विटर हो, सोशल मीडिया हो, चाहे वो आर्टिकल्स हो, पेपर्स में इतनी भरमार है इसके बारे में और इतना लोगों, क्योंकि ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति सर्वसमावेशी है, सबको छूती है। इसमें विद्यार्थियों के लिए, इसमें शिक्षकों के लिए, इसमें संस्थाओं के लिए, इसमें अभिभावकों के लिए, और जैसा आप बार बार कहते हैं, मुझे लगता है कि ये परिवार केवल शिक्षा परिवार नहीं है, ये घर घर से जुड़ा हुआ परिवार है और हर घर में हमारी उस तरह से पहुंच है। तो इसका अभिप्राय ये हुआ कि जो कुछ भी लिखा जा रहा है, देखा जा रहा है, सुना जा रहा है, जो रिएक्शंस आ रहे हैं वह ये इंगित करते हैं कि जो पूरा का पूरा माता पिता हैं, अभिभावक हैं, शिक्षक हैं, शिक्षाविद हैं, संस्थाएं हैं, विद्यार्थी हैं, सबको लग रहा है कि शिक्षा नीति में ये हमारे लिए और हमारे अच्छे के लिए, हमारे उज्जवल भविष्य के लिए है, कि भारत को सशक्त करने के लिए है, महाशक्ति के रूप में विश्व में स्थापित करने के लिए है। तो ये लोगों का विश्वास मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात है और ये अपने आप नहीं आता माननीय मंत्री महोदय। उसके लिए जो कुछ राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास हो रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, आपके द्वारा, राज्य मंत्री जी के द्वारा, आपकी पूरी टीम के द्वारा, उससे ये विश्वास अर्जित हुआ है, हम लोगों ने किया है। तो उससे आगे भी इस विश्वास को बनाए रखने के लिए ये हमारे लिए चुनौती है और हम लोग इसको चुनौती को स्वीकार करते हैं कि जो आपकी अपेक्षाएं हैं उसके अनुरूप हम इसको क्रियान्वयन की दिशा में आगे करेंगे। हमने तो ऑलरेडी, जैसा ही आपने कहा था, उसी तरह जैसे ही 29 जुलाई 2020 जो शिक्षा जगत में एक ऐतिहासिक अवसर था और इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से, तत्काल उसके पश्चात हमने सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को लिख दिया था कि इसका पूरा प्रचार प्रसार करें
सोशल मीडिया पे करें, वेबिनार आयोजित करें। अब उन्हें आज के बाद इसका पूरा सारांश निकाल करके हम संक्षिप्त का बना करके सभी विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों को भेजेंगे सार संक्षिप्त, और उनसे अपेक्षा करेंगे कि इसके आलोक में हर स्तर पे वो लोग अपने विश्वविद्यालय के स्तर पर, महाविद्यालय के स्तर पर कार्य करें, और क्षेत्र जोन वाइज और स्टेट वाइज हम विश्वविद्यालयों को चुनेंगे जहां पर कि हम लोग खुद वेबिनार इस बारे में कराएंगे। तो मुझे लगता है कि भविष्य की दिशा आज तय हो रही है, हमें किस तरह से करना है। मुझे खुशी है कि जितने विद्वानों से, चाहे वो हमारा डॉक्टर कश्मीर से लेकर के उनका मार्गदर्शन रहा हो या जो दूसरे सत्र हो, जिन लोगों से हमने अपेक्षा की, और कम समय का 2-3 दिन के समय के उसी में हम लोगों ने अंतराल में ही ये बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया है, और उसमें सभी लोगों ने, विद्वानों ने इसमें बहुत सहयोग किया है। हमारे प्रोफेसर अनिल शास्त्री जी हम मौजूद हैं, जिन्होंने इसकी अध्यक्षता की एक सत्र की। प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोफेसर विजय राघवन साहब ने भी बहुत कम समय में हमारा ये आमंत्रण स्वीकार किया। बहुत श्रेष्ठ वक्ता इसमें रहे, जिससे कि हम सभी को लाभान्वित हम लोग हुए। विश्वविद्यालयों की ओर से, महाविद्यालयों की ओर से और शिक्षाविदों की ओर से भी कुछ ऑब्जर्वेशंस आई, उन सबको हम लोगों ने नोट किया है। उसके बेसिस पर पूरा इसकी एक प्रतिवेदन हम बना करके जल्द ही आपके सम्मुख रखेंगे और पूरे विश्वविद्यालयों के साथ शेयर करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री की जो विशेष बातें थी, जिनकी चर्चा आपने भी की है, मैं थोड़ा सा संस्थान भी से जुड़े हुए हैं, उन्हें ये रिट्रेट करना चाहूंगा कि उन्होंने प्रमुख रूप से इंटरेस्ट, एबिलिटी एंड डिमांड्स मैपिंग इज ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस इसकी चर्चा की, और उन्होंने कहा कि वी मस्ट डेवलप द एबिलिटी ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, इनोवेट आइडियाज, पैशन, फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, पर्पज ऑफ एजुकेशन इन आवर स्टूडेंट्स। कुल मिलाकर के दोनों ही चीजें होनी चाहिए विद्यार्थियों में, वो उसकी उन्होंने चर्चा की, और उन्होंने कहा कि अवर एजुकेशन मस्ट बी इंक्वायरी, डिस्कवरी एंड एनालिसिस बेस्ड। He also emphasized that India can give solutions to talent and technology issue of the world. तो ये एक चुनौती उन्होंने प्रस्तुत की है देश के विद्वानों के सामने, वैज्ञानिकों के सामने, शिक्षाविदों के सामने, हम सभी शैक्षणिक संस्थानों के सामने, कि जो टैलेंट है, टेक्नोलॉजी है, उसके जो भी सॉल्यूशंस हैं वो विश्व को देने के लिए हमको आगे आना चाहिए। और दूसरा उन्होंने एक और बात प्रमुखता से कही है, वो टेक्नोलॉजी के बारे में है, जो कि वी हैव टू चेंज अवर माइंडसेट टुवर्ड्स फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी एंड कनेक्ट द लास्ट पर्सन स्टैंडिंग इन द सोसाइटी। मुझे याद आ रहा है इस समय पर माननीय मंत्री जी की महात्मा गांधी जी एक बात हमेशा कहा करते थे, वो कहा करते थे कि मैं आपको एक जनतब देता हूं कि जब कोई स्कीम या योजना आप लागू कर रहे हैं या सोच रहे हैं, तो ये देख लें कि जो अंतिम छोर पर खड़ा हुआ व्यक्ति है, वहां तक वो बात कैसे पहुंचेगी, उससे लाभ क्या होगा। वो ऐसी ही कुछ बातें माननीय प्रधानमंत्री जी ने कही है। उन्होंने प्राचीन और नूतन के समागम की बात की है, और एक और जो महत्वपूर्ण बात जिसको आपने भी कहा है, मैं संस्थान प्रमुखों से ये कहना चाहूंगा कि इसके लिए हमें माहौल बनाना पड़ेगा अपने संस्थानों में। ये मूल्यपरक शिक्षा, जीवन के मूल, शाश्वत जीवन मूल, पर्यावरण और संपोष विकास के प्रति चिंता एकदम नहीं आती है। इसके लिए पूरा माहौल परिसरों में बनाना पड़ता है, और इसलिए उन्होंने कहा कि हम विश्व मानव बनाए, वी शुड डेवलप द ग्लोबल सिटीजन्स, बट एट द सेम टाइम वो डीपली रूटेड इन इंडिया हिस्ट्री, हेरिटेज एंड कंपोजिट कल्चर में भी वो रहने चाहिए, और अपनी जमीन से जुड़े रहना चाहिए, अपने परिवेश से जुड़ा रहना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, और इसलिए जो कुछ हमारा एंशिएंट विजडम है, ट्रेडिशनल विजडम है, इंडिजिनस नॉलेज है, देशज ज्ञान है, परंपरागत जो हमारा ज्ञान है, उसके बारे में भी लोगों की जानकारी होनी चाहिए, और जो कुछ नया है मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पूरे विश्व में, उसको भी हमें स्वीकार करना चाहिए। तो इस पूरे ज्ञान के आलोक में, और आपका जो मार्गदर्शन आज हमको पूरे दिन भर मिला है, उसके आलोक में हमें भविष्य में नई दिशाएं तय करनी होगी, और उसके लिए पूरा रोड मैप बनाना होगा। मैं इस अवसर पर माननीय मंत्री जी, आपके कुशल मार्गदर्शन के लिए माननीय राज्य मंत्री जी की उपस्थिति, गवा में उपस्थिति और उनके मार्गदर्शन के लिए आपके प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, और मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं सभी अपने जो चेयरपर्सन्स हैं डिफरेंट सेशंस के, उनके लिए, और जो हमारे स्पीकर्स हैं, और सबसे ज्यादा पूरे देश भर के संस्थानों के कुलपतियों, प्राचार्यों, शिक्षाविदों, स्टेटरी बॉडीज के चेयरपर्सन्स, मेंबर सेक्रेटरी, विभिन्न
केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों और विद्यार्थियों जिन्होंने कि इस कार्यक्रम को सफल बनाया देखा है, उन सबके प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। और यूजीसी की ओर से ये मैं आपको और पूरे देश के शिक्षा जगत को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो कुछ भी अपेक्षाएं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आलोक में यूजीसी से होंगी, उसको करने के लिए हम सदैव तत्पर रहेंगे, समर्पण भाव से तत्पर रहेंगे। मेरी जो टीम यूजीसी की है, जिन्होंने कि अहरनिश कार्य करते हुए इसको ये अंजाम दिया है, उन सबके प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री जी, आपको विनम्र प्रणाम। मंजुल भार्गव को भी प्रणाम और बाकी सभी जो लोग उपस्थित हैं उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। इसी के साथ ही हम आज के इस कॉन्क्लेव का समापन करते हैं। मैं एमएचआरडी की तरफ से और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग परिवार की तरफ से सभी अतिथियों का, सभी वक्ताओं का और सभी गुणीजनों का पुनः धन्यवाद व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि देशव्यापी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रचार प्रसार के अभियान में और उसके क्रियान्वयन में आप सभी लोग हमारे सहयोगी बनेंगे। आप सभी को पुनः धन्यवाद।